Hello friends, welcome to my channel Science Analytica. So today we'll discuss about the topic S block elements. So before starting the S block element, we all should know that there are two categories of S block element. First one is alkali metal, second one is alkaline earth metal. तो जो फर्स्ट है हम क्या डिस्कस करेंगे, अल्कली मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और अल्कली मेटल्स में हमारे कौन कौन से मेटल्स आते हैं, वो है नेमली लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। और उनके जो कोरस्पॉन्डिंग हमने एटॉमिक नंबर यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं। लिथियम इज़ हैविंग 3 एटॉमिक नंबर, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है इट इज़ 11, फॉर पोटेशियम इट इज़ 19, रुबीडियम इट इज़ 37, सीजियम इट इज़ 55 एंड फॉर फ्रेंशियम इट इज़ 87. So now these all are the atomic number, but the main thing of our interest is their atomic configuration. If you pay attention toward the atomic configuration of this group alkali metals, you will find that their last जो electrons है it is going to the s block, s shell. So you can say that their general configuration is ns1. Namely, you can see in lithium the configuration is 2s1, for sodium it is 3s1, for potassium it is 4s1, for rubidium it is 5s1, and same here for cesium it is 6s1, and for francium it is 7s1. So you all can see, आप देख सकते हो कि जो उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो कौन सी सबशेल में जा रहा है, एस सबशेल में जा रहा है। सो यही जो एल्कली मेटल है इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या होगा, NS1 होगा। दैट यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट इज, so now we are discussing the physical properties of these alkali metals. So first one is atomic radius. As we all observe, the atomic radius of alkali metal increases as we are moving down the group. Like we have lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium and their corresponding atomic radius. If you pay attention, you will observe that the atomic radius is increasing. Like for lithium it was 1.34, and as we are moving towards the sodium Na, it increases to 1.54. Similarly for potassium it is 1.96. So we can say that as we are moving down the group with so their atomic radius is also increasing down the group, moving down the group. Okay, so next property is ionization enthalpy decreases down the group. Ionization enthalpy is the energy required to remove the most loosely bound outermost electron. So that energy also decreases down the group. That also decreases down the group. So for lithium, as you observe that for lithium it is 520, and as we are going down the group for sodium, potassium, rubidium, cesium etc., it is going on decreasing. Like it's 495, then it is 480, 418, then it reduced to 403. So in this way we can say that their ionization enthalpy decreases, that is less energy is required to remove the outermost electron. So next one is melting point. So similarly also melting point decreases. It is quite obvious when the enthalpy is decreasing, when the less energy is required to remove the electron from their outermost shell. So it is quite evident their melting point will also decrease down the group. So similarly we can say that, and we can also observe here some numerical value where you can easily observe that it is for lithium it is 180, and for sodium it is 97, and then for potassium 64 and so on. You can see it is decreasing down the group. Next one is hydration. Next जो से हमारी अब है physical property that we are going to discuss is hydration enthalpy. Hydration enthalpy also decreases down the group. We can say that the smaller the size of the ion, greater is the degree of hydration. So next property that we are going to discuss about the alkali metal is reducing nature. Reducing nature ये बताता है कि कितनी easily कोई भी atom है, metal है, वो easily अपना electron lose कर सकता है. So if we look at the trend, we'll find that the reducing nature is maximum for cesium and it is minimum for lithium. Why it is so? Because for cesium जो हमारी ionization enthalpy है वो मिनिमम है, यानी हमें वो इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ कर देता है, हमें थोड़ी ही एनर्जी रिक्वायर होगी इसके इलेक्ट्रॉन को अनबाउंड करने के लिए. तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका रिड्यूसिव नेचर है सबसे ज़्यादा रिड्यूसिव नेचर का होगा, रिड्यूसिंग नेचर का होगा. और नेक्स्ट हम लिथियम की बात करें तो उसका साइज़ बहुत छोटा होता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी टाइटली बाउंड है और हमें बहुत एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी उसके इलेक्ट्रॉन को अनबाउंड करने के लिए, और हम कह सकते हैं कि इसकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो ज़्यादा है.
तो आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी लिथियम के लिए, उसके इलेक्ट्रॉन को अनबाउंड करने के लिए। ज़्यादा एनर्जी मतलब कि वो ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन नहीं लूज़ कर रहा, तो उसका जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर हुआ वो क्या हुआ, मिनिमम, तो उसे ईजिली रिड्यूस नहीं किया जा सकता। तो अब हम चलते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो एक्वस सॉल्यूशन में की जो अंदर कैरेक्टर है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे, जो लिथियम अब तक जो था वो क्या कर रहा था, लीस्ट रिड्यूसिव नेचर शो कर रहा था, अब यहाँ वो क्या करेगा, मैक्सिमम, उसका जो रिड्यूसिंग नेचर है वो सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालोगे तो वो एक एनामलेस बिहेवियर भी शो करता है। इट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ जो लिथियम है उसकी वो क्या करेगा, ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जिसकी वजह से वो जो हाईएस्ट रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या हमारे पास, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू लूज इलेक्ट्रॉन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है वो मैक्सिमम है फॉर लिथियम। जितना ज़्यादा हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी होगी किसी भी मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और उसे हम उतना ही क्या मानेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मानेंगे। सो यही चीज़ हमारी लिथियम को जो उनसे क्या है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनाती है, क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है, मोर नेगेटिव है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिड्यूसिंग कैरेक्टर नाउ। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या शो करते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिकली ये जो ग्रुप है वो शो करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। सबसे पहले कि जो ये मेटल हैं, अल्कली मेटल्स हैं, उनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन कैसी है वो हम देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये लोग क्या करते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड, परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि हमारा लिथियम है, जब इसको ऑक्सीजन के साथ हम ट्रीट करेंगे तो हमारे पास Li2O दैट इज़ ऑक्साइड फॉर्म होगा हमारे पास। और हम अगर सोडियम को करते हैं ट्रीट ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास पर ऑक्साइड आएगा हैविंग फॉर्मूला Na2O2। और उसी तरह अगर हम बाकी जो हमारे मेटल्स हैं, एम मैंने इन्हों जनरली नाम दे दिया, एम में क्या क्या आते हैं, एम में आपका पोटेशियम भी आ गया, मीडियम भी आ गया, सीजियम भी आ गया। अगर हम उसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सुपर ऑक्साइड हैविंग अ फॉर्मूला MO2। So because of their high reactivity towards water and air, they are normally kept in kerosene oil। अगर हम देखें तो ये जो अल्कली मेटल है, सोडियम और पोटेशियम, यू ऑल नो कि दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, सो दैट इज़ वाई दे आर ऑलवेज स्टोर्ड अंडर केरोसिन टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद एयर और वाटर। तो हम देख सकते हैं कि इनकी जो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, एयर लगा लीजिए, वाटर लगा लीजिए, वो बहुत हाई है, दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। तो इन्हें थोड़ा सा हम लोग ध्यान से स्टोर करके रखते हैं ताकि वो रिएक्ट ना कर जाए। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ इनकी क्या रिएक्टिविटी है वो हम बताएंगे कि कोई भी मेटल ले लीजिए आप, स्टार्टिंग फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, जो पूरा ही ग्रुप है अल्कली मेटल्स का, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाता है इनका, हैविंग फॉर्मूला M पॉजिटिव। दैट मीन्स मेटल जो सा होगा वो पॉजिटिव पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा और जो आपका हाइड्रोजन होगा वो नेगेटिव पार्ट में कंपाउंड के कंट्रीब्यूट करेगा। सो हम कह सकते हैं कि जो अल्कली मेटल हाइड्राइड्स होते हैं दे आर आयनिक सॉलिड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। एंड दूसरा क्या है कि जो आयनिक कैरेक्टर है इन मेटल हाइड्राइड्स का, इट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप नीचे मूव करते जाएंगे, है ना, तो इनका जो हाइड्राइड का कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर है, वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो लिथियम है वो मैक्सिमम शो करेगा, इस कैरेक्टर को मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक। और उसी तरह आप नीचे आते जा रहे हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, तो ये जो सीडियम और फ्रांशियम वगैरह है तो ये क्या करेंगे, लीस्ट आयनिक होंगे, ये इनका आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। सो ठीक है, डाउन द ग्रुप छोटा आयनिक कैरेक्टर है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट आती है टुवर्ड हेलोजन। इनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या ट्रेंड शो करती है। यहाँ हम देखें कोई भी आपने मेटल लिया, मेटल क्या मतलब अल्कली मेटल लिया आपने जिनको आप स्टडी कर रहे हो, ठीक, इसे हमने M से रिप्रेजेंट किया। X2 क्या है, हमारे हेलोजन्स है। हेलोजन्स में क्या आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन एक्सेट्रा। तो ये क्या करेंगे, ये M पॉजिटिव X नेगेटिव, यानी इस टाइप का फॉर्मूला बनाएंगे कि आपका जो M पार्ट है दैट इज़ जो मेटल पार्ट है वो पॉजिटिव में कंट्रीब्यूट करेगा और जो हेलोजन्स होंगे वो नेगेटिव पार्ट में आपके कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर हम देख ले तो ये, अगर हम सेकंड देखते हैं कि हमारा जो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर है वो कैसे है हमारे इनके साथ, कि जो MOH
हाइड्रोक्साइड ये फॉर्म करते हैं, वो जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं ऑन रिएक्टिंग विद वाटर. सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स. अब बात आती है, हमने देखा कि जो हमारा लिथियम था वो बहुत जगह पे क्या है, एक एनामलस बिहेवियर शो कर रहा है, विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द पीरियड और फैमिली. सो नेक्स्ट वन इज, इनका कारण क्या है जो एनामलस बिहेवियर शो कर रहा है लिथियम. इट इज़ बिकॉज सबसे पहले जो इसका जो साइज़ है लिथियम एटम का, आयन का लगा लीजिए, एटम का भी और आयन का भी बहुत ही छोटा है साइज़ छोटा है, तो इसकी हाई पोलराइजिंग पावर है, पोलराइजेशन पावर बहुत हाई है. साइज़ छोटा होने के कारण ही जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत टाइटली बाउंड है, जिसकी वजह से उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत हाई है. यानी हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो इसकी आयनाइजेशन ज़्यादा होगी. सो अब हम देखते हैं यही जो इसके 3 रीजन है मेनली, इसे क्या करते हैं ग्रुप के दूसरे मेंबर से अलग करते हैं और इनकी जो एनामलस प्रॉपर्टीज़ हैं उसके लिए जिम्मेदार है. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर अल्कली मेटल. अब जो आपका लिथियम है वो दूसरे अल्कली मेटल से कितना और किस तरह से अलग है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो लिथियम है वो बहुत हार्डर है मीन्स उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर टाइटली बाउंड. नेक्स्ट वन इज कि उसका जो हाईली मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है काफ़ी और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है. क्वाइट ऑब्वियस इफ इट इज़ हार्डर तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई ही होगा. सेकेंड वन इज जो लिथियम है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है अमंग ऑल द अल्कली मेटल. हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि जो रिड्यूसिव नेचर है, रिड्यूसिंग नेचर किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा, इंथैल्पी पे. तो इसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी हाई है, हाई होने के कारण ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. ठीक. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एटम एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर अल्कली मेटल्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द एस ब्लॉक और अल्कली मेटल्स. फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आपको इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड हाउ दे आर रिएक्टिंग रिलेटेड टू द अल्कली मेटल्स ऑल्सो. So hope you like the video and understood the concept well. So don't forget to subscribe my channel Science Analytica. Thank you.